میں جیسے ہی رات کو کمرے میں آتا تو میری بیوی تکیہ پکڑے میرے قریب آ کر کہتی کہ ایک رات جب تکیہ، میرا نام ملی ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ابا کی یہاں بہت ساری زمینیں تھیں، اس لیے میں نے شہر جا کر کسی دوسرے کی نوکری کرنے سے بہتر خود اپنی ہی زمینوں پر کام کرنے کو فوقیت دی تھی۔ ابا بھی میرے ساتھ صبح 7 بجے زمینوں پر جاتے تھے اور شام کے 7 بجے ہماری واپسی ہوتی تھی۔ اماں گھر پر ہی موجود ہوتی تھیں۔ میرے اماں اور ابا بہت ہی سادہ لوگ تھے۔ وہ لوگ گاؤں کی تازی اور دیسی چیزیں کھاتے تھے اور اپنی مٹی سے پیار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جس جگہ کی مٹی میں پیدا ہوئے کام بھی وہیں کریں گے اور مرنے کے بعد دفن بھی یہاں ہی ہونا ہے۔ ابا کی اس بات سے میں بھی رضامند تھا۔ ابا کافی خوش اخلاق تھے، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ لیکن میری اماں کے خواب کچھ اونچے تھے۔ وہ چاہتی تھی گاؤں کی ان پڑھ نہیں بلکہ میرے لیے شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے جس سے وہ میری شادی کروا سکیں۔ لیکن مسئلہ بس یہی تھا کہ آج کل کے دور میں اپنی شہری سہولیات کو چھوڑ کر آخر کوئی لڑکی کیوں گاؤں آنا چاہے گی، وہ بھی تب جب وہ لڑکی بذات خود پڑھی لکھی بھی ہو۔ لیکن اماں کے آگے نہ پہلے کسی کی چلی تھی اور نہ چلنے والی تھی۔ اس روز جب میں اور ابا زمینوں سے گھر واپس آئے تو اماں بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کو یوں خوش دیکھ کر میں نے یوں ہی ساری زندگی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ جب اماں نے آتے ہی میرا ماتھا چوم لیا تھا اور ایک دابڑے میں پانی بھر کر میرے پاس لے آئی تھیں اور میرے ہاتھ دھلوانے لگیں، میں سمجھ گیا تھا ضرور کوئی بات ہے جو اماں یوں خوش ہیں۔ میں نے ہاتھ دھونے کے بعد اماں کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تھا اور صحن میں موجود چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ تب ہی ابا بولے تھے، بیگم، آپ کے بیٹے کے علاوہ آپ کے سر کے سائیں بھی یہیں موجود ہیں اور تم تو بس بیٹے کی خدمت ہی کیے جا رہی ہو، ذرا نظر کرم اپنے سر کے سائیں پر بھی کر لو۔ ابا نے مذاق میں کہا تھا، آپ کی تو عمر ہو چکی ہے، یہ کام خود کر لیا کریں، نخرے تو میں نے بس اپنے پتر کے ہی اٹھانے ہیں۔ کہتے ہوئے اماں نے میرے ہاتھ پر ایک تصویر رکھ دی تھی اور بولی تھی، اسے دیکھ علی، کنی سونی کڑی ہے، مینوں تے تیرے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اماں نے اپنی ٹھوس پنجابی میں مجھ سے کہا تھا۔ جب اماں کو مجھ پر پیار آتا تھا اماں ایسے ہی پنجابی میں بات کیا کرتی تھیں، ورنہ وہ اردو ہی بولتی تھی اور یہ بھی میں نے اماں کو بڑی مشکلوں سے سکھائی تھی۔ لیکن یہ سب ان کا پیار تھا، وہ اپنی زبان سے محبت، اس لیے یہ سب تو چلتا رہتا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ پر موجود تصویر کو ایک نظر دیکھ کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اماں، آپ کو میرے لیے جو بھی لڑکی پسند ہوگی میں اسی سے شادی کروں گا، آپ بے فکر رہو، میری نظریں اور کہیں نہیں بھٹکیں گی، اس لیے میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، جس سے بھی شادی کروا دیں کر لوں گا، اور ویسے بھی یہ حق ماں باپ کا ہی ہے اور وہی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنی بات پوری کرتے اماں کے ہاتھ چوم لیے تھے اور کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرتے واپس آ کر اماں ابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لیکن ایک بات اماں، لڑکی پڑھی لکھی لے کر آنا، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کوئی ٹک ٹاکر نہ ہو، میں نے اماں سے کہا تھا۔ اب یہ ٹک ٹاکر کیا ہوتا ہے؟ اماں منہ بنا کر پوچھا تھا۔ اماں، کل جیسکا ڈانس دیکھ کر آپ کہہ رہی تھیں نا، اس کو ذرا شرم لحاظ نہیں، سب کے سامنے ناچ رہی ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں، آج کل کے پڑھے لکھے لوگ اپنی بہن بیٹیوں سے یہی کام کروا رہے ہیں اور ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں، بے شک ان کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کر غیر محرم اپنی آنکھیں سینکتے رہیں، اور اگر ہم لوگ ذرا سمجھانے لگے ان کو تو ہم پینڈو یا پرانی سوچ کے مالک نظر آنے لگتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ ہم ان سے حسد کر رہے ہیں۔ میں نے اماں کو آج کل جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں ایک لڑکا تھا، اس لیے لڑکوں کے خیالات کے بارے میں بہتر جانتا تھا، اور میں کبھی بھی یہ گوارا نہ کرتا کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جو ویڈیو میں ناچ کر چند پیسوں کے عوض سب کے سامنے اپنا آپ عیاں کرتی ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا، اس نے مجھے صحت مند زندگی دی تھی اور میرے بازو میں اتنا زور تھا کہ اپنی بیوی کو چار دیواری میں تحفظ فراہم کراتے ہوئے اس کے لیے حق حلال کی روزی کما کر لا سکوں۔ میں نے اماں کو کہا تھا، تو فکر نہ کر، میں دیکھ کر کوئی شریف لڑکی ہی لاؤں گی میرے پتر کے لیے، لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اچھا ہوا جو نے مجھے بتا دیا۔ میں اماں سے اجازت لے کر گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ میرا پورا دن کافی مصروف رہا۔ آج زمین کو پانی دینا تھا تو سارا دن مجھے اسی میں لگ گیا۔ میرے سارے کپڑے دھول اور مٹی سے اٹے پڑے تھے، بالوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کام کرنے کے بعد چہرہ ٹیوب ویل کے پانی سے صاف کر لیا تھا، لیکن نہانے کا پروگرام گھر جانے کے بعد پر رکھ لیا تھا۔
मैंने जल्दी जल्दी सारा कमा समेटा तो मुझे घर पहुँचते पहुँचते 5 बज चुके थे। मैं अपनी ही धुन में बेलचा एक तरफ रखते हुए राहदारी से होता हुआ अभी घर में कदम रखा ही था कि मुझे अंदर से किसी की नस्वानी आवाज़ आई। आवाज़ से पता लग रहा था वो जो कोई भी थी काफ़ी खूबसूरत होगी। लेकिन मैंने जो नज़रें ऊपर उठाईं तो सामने ही 2 औरतें और उनके साथ 2 मर्द बैठे हुए नज़र आए। मैंने सबको मुश्तरका सलाम करते हुए कमरे का रुख किया था। मैं जल्द से जल्द खुद को इस मट्टी से साफ़ करना चाहता था जो ठंडी हवा चलने के बायस मेरे जिस्म से चिपक गई थी। ठंडे ठंडे पानी से जल्दी जल्दी मैंने शावर लिया था और कमरे से ही अम्मा को आवाज़ लगाई थी, अम्मा ज़रा बात सुनना। और ठीक 5 मिनट के बाद अम्मा मेरे सामने थी। जी मेरे बच्चे, क्या हुआ? और तू इतने ठंडे पानी से क्यों नहाया है? तुझे ठंड लग जाएगी। ज़रा तुझे ख्याल नहीं अपना ना सही अपनी बेबे का ही सोच लिया कर। तू बीमार हो गया तो मेरी जान हलक में आ जाती है। मेरा इकलौता, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। अम्मा मुसलसल बोलते हुए तौलिया लेकर मेरे बालों को खुश्क कर रही थी जिनमें अभी अभी नहाने की वजह से पानी की बूंदें टपक रही थीं। अम्मा क्या हो गया है तुझे? तू इतना परेशान क्यों हो रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ। तू इधर आ, मेरे पास बैठ और मुझे बता, ये बाहर जो लोग बैठे हुए हैं ये कौन हैं? मैंने माँ को बाजू से पकड़ते हुए अपने पास बिठाया था। अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखकर ताज्जुब से मुझे देखा। माथा तो तेरा बिल्कुल ठंडा है, इसका मतलब है बुखार तो तुझे है नहीं। तू कैसे भूल गया था? मैंने तुमको कल रात बात की थी कि लड़की के बारे में, और तू मुझे कहा था पिता कि आपकी मर्ज़ी है, जिससे चाहे मेरी शादी कर दो। और आज जब रिश्ते वाले देखने के लिए आ गए हैं तो ऐसी बुरी हालत में घर में आया है। सच, मुझे तो सामने बैठे बड़ी शर्म आ रही थी जब तू मट्टी से अटा हुआ घर में दाखिल हुआ था। बोलो, क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में? जब से वो लोग आए हैं मैं अपने बेटे की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रही हूँ, और बेटे साहिब जो हैं वो इस हालत में सामने आकर मेरी नाक कटवा चुके हैं। माँ ने जब मुझे पूरी बात बताई तो अब मेरी समझ में आया था कि उसका मतलब वो लड़की जो बाहर बैठी हुई थी, वो लोग मुझे देखने के लिए आए थे। लेकिन अजीब बात थी, हमेशा तो लड़के वाले लड़की वालों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आज कुछ नया ही हो गया था कि लड़की वाले अपनी बेटी समेत लड़का देखने के लिए हमारे घर आए हुए थे। फिर जो भी बोलेंगे तो मेहमान नवाजी हमारा फ़र्ज़ है। और अब जब उनको मालूम था कि मैं घर आ गया हूँ तो मेरा यूँ कमरे में बैठना मुझे मायूब लगा। इसलिए अम्मा की पैरवी करते हुए मैंने भी बाहर जाने का फ़ैसला किया। ठीक है माँ, मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल ही भूल चुका था। और इस दिन बाद इतना काम मिला था कि कुछ और सोचने समझने का वक़्त ही नहीं मिला। तो कैसे याद रहता कि कल रात को मैंने अपनी अम्मा को अपनी मर्ज़ी से रिश्ता करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं मेरी जान, अगर तू भूल गया तो क्या हो गया। सब लोगों को पता है कि तू मेहनत करता है, कोई आवारागर्दी करके थोड़ी ना आया है। जाहिर सी बात है, जब ज़मीन पर काम करेगा तो फिर काम करने के बाद तो ऐसी हालत ही हो जाती है। चलो जल्दी से कमीज़ पहनकर बाहर आ जाए, नज़र ना लगे मेरे बेटे को। कितना प्यारा लग रहा है, देखना वो लोग देखते ही हाँ कर देंगे। फिर मैंने बाहर आकर सबसे सलाम किया और वहीं पर अब्बा के साथ पराजमान हो गया। मैंने लड़की की तरफ सिर्फ़ एक ही नज़र देखा था, उसके बाद दोबारा मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी, और एक नज़र में ही मुझे वो लड़की पसंद आ गई थी। बातों बातों में मुझे पता चला था कि वो लोग शहर के रईस लोग हैं और उनके साथ उनका एक बेटा बेटी और ख़ुद वो दोनों माँ बाप भी रहते हैं। चाय पीने के बाद दोनों बाप बेटे को लेकर अपनी ज़मीन पर चला गया था। वो रास्ते में ही बातें करते करते मुझे मालूम हुआ था कि वो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी बेटी के हिसाब से कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। वो लोग चाहते थे कि किसी शरीफ ख़ानदान में अच्छे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे। उनका कहना था कि दौलत उनके पास बहुत है, इसलिए वो किसी अमीर के घर भी अपनी बेटी को ब्याह सकते थे। लेकिन बात वही है कि लोग अच्छे होने चाहिए, और आजकल के ज़माने में अच्छे लोग मिल जाना वाकया खुशकिस्मती होती है। जब उनके पास मेरी तस्वीर आई थी, दोनों ने देखते ही मेरे बारे में सारी मालूमात निकलवा ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया था कि हमसे मिलने के बाद फ़ौरन से शादी की तारीख़ रख देंगे। मैं उनकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान हुआ था। भला कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए इतनी जल्दी क्यों चाहेंगे? वो खुद तो अमीर होते हैं। मुझ जैसे गरीब के साथ अपने शहर की सारी आसाइशें छोड़कर अपनी बेटी को मेरे साथ गांव में क्यों ब्याहना चाहते थे? ऐसे ही बहुत सारे लामतनाही सोचें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। बज़ाहिर तो मैं उनके सामने नॉर्मल ही रहा था, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ़ एक बात का खटका लगा रहता था, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं अभी नावाकिफ़ था कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या तूफ़ान उठने वाला है। मैंने माँ को जो लड़की के बारे में सारी बातें कही थी,
वो शायद मेरे आगे आकर खड़ी होने वाली थी। हम लोग बातें करते करते दोबारा से घर आ गए थे। रात का खाना खाने के बाद वो लोग शहर के लिए रवाना हो गए थे और ठीक 15 दिन के बाद उन्होंने निकाह की तारीख रख दी थी। उनका कहना था कि निकाह वो लोग सादगी से करना चाहते हैं, जबकि शादी के वलीमा की तकरीब जो है वो बड़े पैमाने पर करेंगे। हमें तो उनके किसी भी फैसले से कोई एतराज़ नहीं था। अम्मा तो वारी न्यारी जा रही थी। फिर जो कुछ उन्होंने कहा था उसके मुताबिक दिनों में ही हमारी शादी के दिन करीब आ गए थे। निकाह होने के बाद से लेकर मैंने लड़की को अब तक नहीं देखा था। हम लोग शहर में ही आ गए थे क्योंकि 2 दिन के बाद वलीमे की तकरीब रखी गई थी और वो लोग वलीमा किसी होटल में करना चाहते थे, जिस पर मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। मैं उनका लाडला बेटा था, इसलिए वो लोग अपने सारे अरमान मेरी शादी पर पूरा करना चाहते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया था। रुखसती के बाद रवायती दुल्हन की तरह मेरी दुल्हन ने रोने जैसा कोई ड्रामा नहीं किया था। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यही थी, एक लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने शौहर के साथ दूसरे घर जा रही थी, भला वो क्यों ना रोई थी। शायद ये शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं की जा रही थी, या वो अपने माँ बाप से नाराज़ थी कि उन्होंने इसकी शादी एक गाँव के लड़के से कर दी थी, जहाँ पर अब उस शहर जैसी सहूलियात मुयस्सर नहीं होने वाली थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी ये सारी गलतफहमियाँ दूर कर दूँगा। जो सहूलियात उसे शहर में मौजूद थी, इतनी ना सही लेकिन जितनी भी हो सकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। ज़ाहिर सी बात थी कि जब वो लड़की अपने माँ बाप को अपना घर छोड़कर, अपने शहर की सहूलियात छोड़कर मेरे लिए गाँव में, मेरे साथ गाँव में रहने के लिए तैयार हो गई थी, तो ये सब करना तो मेरा हक़ बनता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी शादी की पहली रात ही मेरा इंतज़ार किए बगैर कपड़े तब्दील कर चुकी थी। उसे देखकर मुझे काफ़ी हैरानगी हुई और अफसोस भी हुआ था, क्योंकि मैंने अभी तक उसे जी भर कर देखा भी नहीं था। लेकिन खैर थी, क्योंकि वो लड़की थी। अब सुबह से वो इतने भारी ज्वेलरी और कपड़े पहन कर बैठी हुई थी, शायद वो थक गई होगी, उसने कपड़े तब्दील कर दिए होंगे। मैंने खुद से सवाल करते खुद को ही जवाब दिया था और कमरे के दरवाज़ा बंद करके अपनी बीवी को सलाम किया था, जिसका अपने सर का जवाब देने के बाद अपना तकिया उठाया था और चारपाई के नीचे जाकर लेट गई थी। उसकी इस हरकत से तो मैं अपनी जगह पर दंग रह गया था। शादी की पहली रात थी और वो अजीबो-गरीब हरकतें किए जा रही थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा था। वो एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, बाखूबी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ थी, फिर भी ना जाने क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। उसकी इस हरकत से तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने जब सख्ती से उसे चारपाई के नीचे सोने से मना किया तो वो ना मानी और कहने लगी, आपको ये सब अजीब लग रहा होगा और आपके जहन में मेरे लिए मनफी ख्यालात भी आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मेरे ऐसा करने के पीछे एक ख़ास वजह है, और वो यही है कि मैं अगर बिस्तर पर आपके साथ सोई तो आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। बीवी की बात सुनते ही मेरा अव्वल कहका लगाने को क्या था। क्या वो मुझे इतना बेवकूफ़ समझती थी कि वो कुछ भी ऑल फोल कहेगी और मैं उसकी बात मान जाऊंगा। मुझे ये सब बीवी के ड्रामे लगे थे, लेकिन शायद वो कुछ वक़्त चाहती थी जिसकी वजह से वो ये सब कर रही थी। इसलिए मैंने भी झगड़ा करके शोर मचाने के बजाय खामोशी से उसके फ़ैसले का एहतराम किया था, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे साथ रहते हुए वो कुछ ही दिनों में सब कुछ समझ जाएगी और अपनी दिली रजामंदी से ही हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती करने का मैं वैसे भी कायल नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से चारपाई पर लेट गया और उससे कहा कि तुम आखिर कब तक ऐसे लेटती रहोगी चारपाई के नीचे। जब मैंने ये बात कही थी तो मुझे यूँ लगा जैसे उसके चेहरे का रंग तब्दील हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दर आई थी, जिसे मैंने अपना वहम गर्दाना था। बस कुछ अरसे तक ही मुझे ऐसा करना है, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी बीवी की बात सुनते मैं मुस्कुरा दिया था। दिन भर की थकान की वजह से जल्द ही नींद की आगोश में चला गया था और उसके बाद मेरी आँख सुबह 8 बजे खुली थी। हैरत अंगेज़ तौर पर शहर में रहने के बावजूद वो वहाँ की आसाइशों की आदी मेरी बीवी मुझसे पहले ही उठ चुकी थी। अपनी बीवी की इस फरमाबरदारी पर मैं काफ़ी खुश हुआ था। उससे साफ ज़ाहिर होता था कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस रिश्ते को निभाने की, और बहुत जल्द हमारे बीच जो दूरियां नज़र आ रही थी वो भी ख़त्म होने वाली थी। मैंने एक नज़र मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और जल्दी से नहाने चला गया था। अच्छे से तैयार होकर मैं अपनी बीवी को अपने हमरा लिए हुए कमरे से बाहर आ गया था। अम्मा तो हम दोनों की बलाएँ लेती वारे नियारे जा रही थीं। उन्होंने मेरी शादी शहरी लड़की से की थी और उनका ये फ़ैसला मुझे कुछ गलत भी ना लगा था, क्योंकि मेरी बीवी किसी भी अंदाज से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे यहाँ रहने पर कोई परेशानी दरपेश आ रही हो, जिसका साफ मतलब था कि वो यहाँ पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। काफ़ी हद तक कोशिश में वो कामयाब भी रही थी।
दिन काफ़ी तेज़ी से गुजर रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी में दूरियां अभी तक बरकरार थीं। कभी कभी मेरा दिल करता था मैं खुद ही सारे फासले समेट दूँ। वो मेरी बीवी थी, मैं इस तरह तकता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे बीवी का रिश्ता जो होता है वो बहुत खूबसूरत है और मैं ऐसा करके उसके दिल में अपने लिए खौफ पैदा नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था ये सब हम दोनों की बाहमी रजामंदी से हो। अब कुछ दिनों से मुझे खुद ही अब कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी। यूँ लगता था जैसे जिस्म दर्द से टूट रहा हो, जिस्म में सुइयाँ चुभती महसूस होती थीं। शायद अब मैं ज़मीनों पर काम करके ख़ुद को ज़्यादा थका लेता था, या फिर शायद यही वजह होगी कि एक ही कमरे में अपनी बीवी के साथ रहते हुए भी मैं उससे दूर था, और यही मेरी बेचैनी की वजह थी, जिसकी वजह से मुझे ख़ुद में इस तरह की तब्दीलियाँ महसूस हो रही थीं। मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, बल्कि नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन अब दिन ब दिन मेरी बीवी के बर्ताव में कुछ तब्दीलियाँ वाज़े तौर पर मुझे महसूस होती नज़र आ रही थीं, और वो कोई मस्बत तब्दीलियाँ नहीं थीं। पहले तो वो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखे मुझसे बातचीत करती थी और अम्मा से भी खुश अखलाक़ी से पेश आती थी, लेकिन अब मुझे यूँ लगता था जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उसका अंदाज़ काफ़ी बदला बदला सा था, वो बेजार सी नज़र आ रही थी। शायद वो भी ये दूरियां समेटना चाह रही थी और लड़की होकर वो पहल नहीं करना चाहती थी, या शायद शर्म उसके आड़े आ रही थी। मुझे तो ऐसे ही महसूस होता था, लेकिन हकीकत क्या थी इससे तो मैं सिरे से ही नावाकिफ़ था। अब मुझे अपनी बीवी का पेट भरता हुआ महसूस हो रहा था और मेरे जहन में मनफी ख्यालात पैदा होने शुरू हो गए थे। बीवी का पहली रात ही मुझसे दूरी बनाए रखना, उसके बाद उसके उठते बैठने का अंदाज़ में यूँ अचानक तब्दीली आ जाना और उसका यूँ पेट भरता हुआ महसूस होना, ये सब बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मैं वो सोचना नहीं चाहता था क्योंकि वो मेरी बीवी मेरा लिबास थी, लेकिन इस हकीकत से पर्दा उठाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था कि हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस पर नज़र रखूँगा कि आखिर मेरी बीवी चारपाई के नीचे सोने की ज़िद क्यों करती है। वो कमरे में दूसरी चारपाई भी सो सकती थी, लेकिन रोज़ मेरी ही चारपाई के नीचे सोने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। इससे पर्दा उठाने के लिए मैंने एक रोज़ बीवी के जूस में नींद की गोली मिलाकर उस चारपाई पर लेटाकर खुद उसकी जगह चारपाई के नीचे लेट गया, तो ये देखकर जान निकल गई कि वहाँ तो बीवी के तकिए के करीब ही मट्टी नरम थी। जब मैंने वहाँ से मट्टी हटाई तो जो चीज़ सामने आई, सर पर आसमान टूट पड़ा। लेकिन अब तो बीवी गोली के ज़ेरे से सो रही थी। मैंने सोच लिया था सुबह होते ही बीवी से सब जान कर रहूँगा। अगली सुबह जब बीवी उठी तो मैंने चारपाई हटाते जो चीज़ उसके सामने की, उसे देखते उसके चेहरे का रंग फक हो गया। लेकिन जल्द ही वो खुद पर काबू पाते लाइल्मी का इजहार करने लगी, तो मैंने ढिठाई से काम लिया तो वो बिलाखिर बोल ही पड़ी। मैं शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी और हम लोग बाकर शादी करने वाले थे, लेकिन अब्बा को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने उस लड़के को जेल भिजवा दिया और मुझसे कहा कि अगर मैंने उनकी बात मानकर शादी ना की तो इसको किसी भी केस में फंसा कर फांसी की सज़ा दिलवा देंगे। इसलिए मैंने खामोशी से शादी कर ली। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका आजमाया जाए जिससे मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए और मैं वापस उसके पास जा सकूं। इसलिए शादी से पहले ही एक पीर बाबा के पास गई जो जादू टूना करते थे। उन्होंने मुझे 4 तावीज़ दिए और चारपाई के नीचे रखकर रोज़ रात को 3 बजे के वक़्त इनमें सुइयाँ चुभोने का कहा था। इससे तुम्हारे सर में शदीद दर्द होता और जल्द तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाती है और मैं इस रिश्ते से आज़ाद होकर उसके पास चली जाती। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।